मुसलमान वो कौम है, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, मरकर इस मिट्टी में भी दफन होते हैं तो गुसल कर कर वतन की मिट्टी को तक हम नापाक नहीं करते। बताएंगे। आज छोटे पैमाने पे हम लोग शेर पड़े प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। अगली बार किसकी सरकार? इंशाल्लाह इमरान भाई नेक्स्ट एमएलए, नेक्स्ट चामराजपेट में जितने भी सीटें हैं वो हमारी है। साहब ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ ಯಾರು? ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಮುಂದೂ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋಣ. आज और इसके पहले लास्ट वीक हमारे जितने भी भाई जो भी बेंगलुरु सिटी से कहाँ से लेके चाहे शिवाजी नगर हो, टैनी रोड हो, चाहे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे दूसरी कौन सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हमारे पार्टी में दाखिला ले को ही देवेगौड़ा साहब की लीडरशिप में, कुमारण्णा साहब की लीडरशिप में ज्वाइन करें तो मैं सबको मैं दिल से वेलकम करता हूँ। श्री तपेश सुहेल साहब ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಪೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸಿಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಭಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು, ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದರ ದರವನ್ನು ಏರಿಸ್ತಾ ಬಂದರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ,
ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು. ನಾನು BJP, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ದಿ ಸಫರರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ COVID-19 ನೆಪ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡನೀಯ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಭಾವನೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು OPEC ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ 18,900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಯಲೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು 13 ಪಾರ್ಟಿದು ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಾನೇ ಆಯ್ಕೆ. ನರಸಿಂಹರಾಯರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿ. ಅವರು 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೇನು ನಮಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಿತು ಇದನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇಳೆಗೆ ಆಗಲೇ OPEC ಕಂಟ್ರೀಸು 8 ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ OPEC ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಕಾಗದ ಬರೆದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ವಾಜಪೇಯಿ 13 ದಿನ ಸರ್ಕಾರ. ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಫೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇದು ಹಣೆಬರ ಯಾವನ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು विश्वास मत से आज जो भी आपके मीडिया जो यहाँ पे आई है, आज स्पेशली दूसरे पार्टी से या तो इसी पार्टी में रहकर काम ना करते हुए जो नाराज़गी जता रहे थे, वो लोग फिर से घर वापसी होके आज रीजॉइनिंग प्रोग्राम रखे हुए थे हमारे बड़े साहब देवेगौड़ा साहब के लीडरशिप में, और शफीउल्लाह साहब और हमारे उमेश इमरान उनके नेतृत्व में एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने ज्वाइनिंग दी है. इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग JDS में जुड़ेंगे. और आज हमारे तबरेज़ साहब जो कि पहले भी JDS में थे, ऐसा नहीं कि JDS में आज नए ज्वाइन हो रहे हैं, पहले भी JDS में थे, बट JDS से सियासती से दूर हो गए थे. तो हम लोगों ने इनको कन्विंस करके फिर से वापस JDS ज्वाइन करवाया है. इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में सिटी में इनको पोस्टिंग दी जाएगी. इंशाअल्लाह एक अच्छी सी पोस्टिंग दी जाएगी, जो कि इनकी कैपेसिटी के तौर पे हो सकता है. वर्किंग प्रेसिडेंट जल्दी ही हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब और 25 लोग ज्वाइन हुए हैं सर. 25 जिसकी एक की कैपेसिटी 1000 की कैपेसिटी है, वैसे लोग हैं. स्ट्रेंथन लोग 25 लोग हमारे आज ज्वाइन हुए हैं. हर 2 दिन में ज्वाइनिंग चल रही है. आज आप लोग आ गए, इसीलिए आपको नज़र आ रहा है कि आज ज्वाइन हुए हैं करके. हर 2 दिन या 3 दिन के अंदर एक मीटिंग ऐसी मुनक़िद की गई है. शिवाजी नगर में आप देखिए पिछली वीक भी 50 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी. आने वाले दिनों में जैसे कि हफ्ते नेक्स्ट मंगल में भी एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम है, और बहुत ही जल्द 30 तारीख इसी महीने बड़े साहब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बड़े पैमाने पे ज्वाइनिंग प्रोग्राम, और जो भी इस कोरोना के महामारी में हमारे JDS के जितने लोगों ने भी काम किया है उनको सम्मानित किया जाएगा 30 तारीख को.
और उसी तरीके से हमारे देवेगौड़ा साहब मुसलमानों को बीबीएमपी में कितने सीट देने वाले हैं ये भी उसी दिन अनाउंस करेंगे इंशाअल्लाह। सर देखो 75 सीट्स देवेगौड़ा साहब ने प्रॉमिस किए हैं कि 75 सीट्स देंगे करके बोल के, जिसमें से इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ भी हमारे उम्मीदवार जो कि सोशल एक्टिविस्ट हो या तो रेप्यूटेड पर्सन हो, हम लोग उनको चुनेंगे और उनको चुन के हम लोग सीट देंगे इंशाअल्लाह। फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जेडीएस में थे जी उसके बाद आप दूसरी पार्टी में गए जी अब फिर से आप वापस आए हो, जी। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि जितना हम माइनॉरिटीज़ को जेडीएस पार्टी में सपोर्ट मिलता है, किसी और पार्टी में ना उतनी इज्जत मिलती है ना उतना सपोर्ट मिलता है। और ये पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है। ये इस पार्टी के जो हाई कमांड लीडर हैं जो देवेगौड़ा साहब, वो आज पूरे हिंदुस्तान के सीनियर लीडर हैं, पूरे हिंदुस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन हैं। तो उनकी लीडरशिप में, कुमार राणा की लीडरशिप में, हमारे सलीम साहब हमारे प्रेसिडेंट की लीडरशिप में, इमरान साहब की लीडरशिप में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारा मिशन यही है कि 2003 में कुमार राणा को फिर से 2023 में कुमार राणा को फिर से सीएम देखना बनाएंगे इंशाअल्लाह। आपको जिस तरह से अभी पोस्ट दिया है जी। डीएसपी देने वाले हैं जी। आपको क्या लगता है कि आपको आपके मोहल्ले के लोग सपोर्ट करेंगे या आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि आप दूसरी पार्टी में भी रह चुके हैं? इंशाअल्लाह साहब ज़रूर मनाएंगे, घर घर जाएंगे, पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा के मेहनत पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें ये उम्मीद है अल्लाह पाक से इंशाअल्लाह हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तमाम कर्नाटका की अवाम को और जेडीएस के जितने भी वेलविशर्स हैं तमाम को मेरी तरफ से और माइनॉरिटी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से सलाम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे बड़े भाई तबरेज़ को कि उन्होंने जेडीएस में ज्वाइन हुआ। उन्होंने बहुत ही एक ऐसा फैसला किया है जो आने वाले दिनों में उन्हें भी फ़ायदेमंद होगा, कौम के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और जेडीएस पार्टी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे सदर साहब का, माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट जनाब सलीम पाशा साहब का, कि इन्होंने तबरेज़ भाई को और हम जैसे नौजवानों को एक मौका दिया सियासत में हिस्सा लेने के लिए और कौम के वास्ते आवाज़ उठाने के लिए। मेरे दोस्तों, आप तमाम जानते हैं कि माइनॉरिटी के साथ, माइनॉरिटी में तो सिख, बौद्ध, जैन, क्राइस्ट, मुस्लिम ये सारी ज़ातें आ जाती हैं, लेकिन स्पेशली ज़्यादातर मुसलमानों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। हिंदुस्तान में डर की सियासत की जा रही है, डर की सियासत की जा रही है। मुसलमान वो कौम है, मज़हब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मज़हब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, मरकर इस मिट्टी में भी दफन होते हैं तो गुस्ल कर कर वतन की मिट्टी को तक हम नापाक नहीं करते। हम वो कौम हैं, हम वो कौम है, लेकिन हमारी कौम में काबिलियत भी है, हुनरमंदी भी है, लेकिन हमें सिर्फ पंचर डालने की हद तक, मैकेनिक की हद तक रख दिया गया है। ना ही सियासत में हमें मौका दिया जा रहा है आगे बढ़कर हिस्सा लेने का और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने का, मजलूम की हक की आवाज़ बनने का, ना ही किसी और चीज़ में हिस्सा दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक देवेगौड़ा जी की बात है, कुमार स्वामी जी की बात है, आप तमाम ने आज की इंटरव्यू में उनसे मुख्तलिफ सवालात किए। उन्होंने अपना नज़रिया आपके सामने रखा कि वो मुसलमानों के लिए कितनी हद तक काम करना चाह रहे हैं और कितनी हद तक काम कर चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में भी, चाहे वो बीबीएमपी इलेक्शन हो, जिला परिषद इलेक्शन हो, तालुक पंचायत इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो या एमपी इलेक्शन हो, आने वाले दिनों में मुसलमानों को उन्होंने वादा किया है कि जितना हो सके मुसलमानों को हम आगे लेकर आएंगे। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि चाहे वो हमारा दुश्मन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, अगर हमारा कोई मुसलमान बंदा कोई जेडीएस पार्टी में ज्वाइन हुआ है तो मैं कर्नाटक की आवाम को इल्तिजा करता हूं, आप अपनी दुश्मनी बालाए ताक रखिए, अपनी दुश्मनी को भूलकर कौम के हक में सोचिए और उस आदमी को सपोर्ट कीजिए और उस आदमी को आगे लेकर जाइए, क्योंकि मंजिलें यही एक ही आदमी शुरू करता है, मंजिलें बढ़ती हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना रहा कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। जब तक मुसलमान आगे नहीं बढ़ेंगे सियासत में, अपनी ज़ात को, अपनी मफाद को, अपनी दुश्मनियों को दूर रखकर, तब तक हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। हमें यहाँ पर मोहम्मद कासिम नहीं आने वाले हैं, कोई मूसा काजिम नहीं आने वाले हैं। आज के फिरौन के दौर में हमें खुद अपने हक की आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में क्यों नहीं चले जाते, या आप अपनी खुद की पार्टी क्यों नहीं खोल लेते?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो सवाल है ये आपका नहीं अवाम का सवाल है। अवाम के नुमाइंदे बनकर आप पूछ रहे हैं। रही बात MIM की, SDPI की, ये सारे पार्टियां एक कम्युनिस्ट का टैग ले चुके हैं, सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए नाम ले चुके हैं। जहां तक बात है जनता दल सेक्युलर की, इसके नाम में ही सेक्युलर है, इसमें हर तरह का आदमी ज्वाइन हुआ है और हमें हिंदुस्तान में है, हम हिंदुस्तान में हर कौम हर जात का आदमी चाहिए। ऐसी सियासत नहीं चलेगी कि खाली मुसलमानों की पार्टी चाहिए, खाली दलितों की पार्टी चाहिए। पार्टी वो होनी चाहिए जिसके अंदर मुसलमान भी होना चाहिए, दलित भी होना चाहिए और सब होना चाहिए। MIM मुसलमानों की पार्टी है तो मुसलमानों की हद तक ही रखिए। हमें मुसलमानों का लीडर नहीं बनना है, हमें अवाम का लीडर बनना है। हमारा हर एक कैडर, हमारे सदर साहब भी वही कहते हैं, हमें सिर्फ जो लॉकडाउन के समय में 4 एम्बुलेंस, 15,000 रेशन किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनसे पूछिए क्या उन्होंने सिर्फ मुसलमान के घर पहुंचाई है? क्या उन्होंने हर एक कौम के आदमी के अंदर पहुंचाई है? रही बात, मैं मुसलमानों की हक की आवाज इसलिए बात कर रहा हूं कि मुसलमानों का हाथ पकड़, मुसलमान सिर्फ वोट बैंक हो चुका है, यूज एंड थ्रो।